So in the last day, we had a discussion regarding the physical properties of metals and non-metals. Let's have a revision on that. And then I would like to go on the chemical part of that reactions. Okay. So let me do the revision first. How many of you got the book of Viva Publications? Raise your hand. How many students got your books? Can you see the board? Yes, sir. Okay, good. So now tell me some of the properties of metals and non-metals. So let me put first the metals. So what are the properties? Some of the properties. 5% tell me one property of metal. 5% unmute yourself. Sir, malleability. Malleability. Yes, sir. The ductility. Ductility. Sonorous. Luster. Sir, sonorous. The conductor of heat. Sir, good conductors of electricity. Good conductors of electricity. Good conductors of heat and conductors of electricity. Sir, Okay. वो दिख नहीं रहा है. Pradhan Khan, is there anything left? Yes, sir. Okay, let me recollect again. Hello. Hello. Hello, sir. Yes, I'm back. Hello. Hello. Okay. Now can you see the board? Yes, now it's visible. Yes, sir. Okay. So now let me today start with the new topic. That is the chemical properties. Chemical properties of metals. So the first one is the action of oxygen on metals. Oxygen on metals.
So we can write this. Yes, you can write, but Okay, sir. let me share something so that then we would like to write. Okay. सर Yes. सर इसका एक एग्जांपल ये होगा ना, सब द होगा। डेंसिटी ऑफ मेटल इज यूजुअली हाई। So now the property of chemical properties. of Chemical metal. properties of metals and non-metals. So let's Reaction with start oxygen and water. and water. Physical properties alone are insufficient to classify an element as a metal or non-metal. So we have to take help of chemical properties. First is reaction with oxygen. Reaction of metals with oxygen. Metals react with oxygen to form metal oxides. Iron, if exposed to air and water, forms rust. So can you see this? Metal plus oxygen, when they are combining together to form a metal oxide, like the all the metals like iron. So from the air, the iron is consuming the oxygen. As a result, it's forming the rust. So that's why we need to color it, paint it, or we need to galvanize the iron from rusting to save from it rusting. Okay. So now the process of galvanization came into the use in our daily life. So this is the one of the property when the metal is getting with oxygen, so it gets us the metallic oxide. One more thing I would like to say is that all the metallic oxides are basic in nature. All the metallic oxides are basic in nature. Like the sodium, when it's reacting with oxygen, is forming sodium oxide. And when the sodium oxide is getting with water, so it's forming sodium hydroxide. It's a strong base. Okay. Rust is iron oxide. The reaction of rusting of iron can be given as iron reacts with oxygen and water and produces rust and hydrogen. Magnesium ribbon burns in air with bright white flame, producing magnesium oxide. Magnesium reacts with oxygen and produces magnesium oxide. Copper, exposed to moist air, forms green colored coating on the surface. It is copper oxide. So is there any confusion till now what we have discussed? Is there any question do you want to ask? No sir, no. नो सर। सर Okay. कॉपर ऑक्साइड कैसे बनता है? कॉपर ऑक्साइड CuO. अभी कॉपर का वैलेंसी आपको जानना पड़ेगा. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन? ठीक है, तो Cu का भी 2 है और ऑक्सीजन का भी 2 है, तो दोनों एक्सचेंज करता है जो वैलेंसी फॉर्मेशन होता है, तो दोनों मिला के क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड होता है. ठीक है. To understand the nature of oxide formed by metals, that is acidic or basic, let's perform an activity. But before that, remember, if in a solution red litmus paper turns blue, then the solution is basic. While if blue litmus paper turns red, then the solution is acidic. Are you getting it? जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला कि when a metal is reacting with oxygen, so you are getting what? You are getting metallic oxide. So these metallic oxides are basically basic in nature. तो इसमें आप लिटमस पेपर डालोगे तो इसका कलर क्या आएगा? कौन बोल सकता है? सर ब्लू। ब्लू. वेरी गुड. ब्लू। सर जो ब्लू पेपर रहेगा वो रेड हो जाएगा। वो Yes, sir. एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो ब्लू डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा. ठीक है. Activity. So this is the activity. What you are doing with this metallic oxide is that dissolving spoonful of rust in every very little amount of water. Then what you are saying that the shake the suspension well
and deep red and blue litmus paper in solution. What do you observe? So no effect on blue litmus paper. As we all know, the blue litmus paper remains blue when you are dipping in basic solutions. And red litmus paper turns blue. This indicates the suspension is basic in nature. Okay? Yes, sir. Yes, sir. From this activity, you can verify that the metal oxides are basic in nature. Similarly, magnesium oxide, if dissolved in water, turns red litmus paper into blue, confirming the same result. Reaction of nonmetals with oxygen. Okay, this part I am coming it later. Let me explain a little bit later on this thing, and then I am coming with the non-metal part. Oh, let's complete it because it's a good thing. Let's perform another activity to understand this reaction. Please perform this activity with the help of teacher. Another activity by putting the sulfur in a spoon. Okay, जैसे deflagrating spoon. एक चम्मच में आप थोड़ा सा सल्फर ले रहे हो, ठीक है? Take small amount of powder sulfur in deflagrating spoon as shown and heat. आप उसको heat दे रहे हो. As soon as the powder start burning, put the spoon into glass jar and those jar with lid so as to collect the gas produced. तो उसमें आप जो है gas जो produce किया उसको collect कर लिए. Quickly add some quantity of water and again close the lid. उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको आप cover कर लिए lid से. Shake the jar well and taste the nature of the solution with red and blue. What is the observation? The red litmus did not change, but the blue litmus paper turns red, indicating that the solution is acidic in nature. तो basic oxides जो है ये क्या हो गया? ये मेटल के साथ जो आ रहा है मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. जैसे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है CO2 एंड द CO2 व्हेन द CO2 इज रिएक्टिंग विद whom CO2 is reacting with water, then you can get H2CO3, that is the carbonic acid. Okay, so this kind of thing, again the sulfur is reacting with O2 SO2, so when it's reacting with H2 you are getting sulfuric acid. So ये जब अंदर आता है तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं. या साई पर्सन बोलिए. सर ऑक्सीजन को बनाने की प्रोसेस क्या है? ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग. अभी लेट्स फोकस ऑन द थिंग. पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने से ऑक्सीजन हम पा सकते हैं, ठीक है? Basically, burning of sulfur in air forms sulfur dioxide. It dissolves in water, forming sulfurous acid. Sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. Sulfur dioxide reacts with water and produces sulfurous acid. Clearly, nonmetals on reaction with oxygen forms acidic oxides. Reaction with water. From this activity, you will come to know that metals react with water, causing the release of energy in the form of heat and produces the alkaline, that is, basic solution. Nonmetals, on the other hand, generally do not react with water. Nonmetal phosphorus is highly reactive in air, so it is kept in water. ठीक है, तो हम इसमें दो पार्ट पढ़े. एक है कि रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड विद वाटर. ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा भी इन डेप्थ पढ़ेंगे.
Can you see the board? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, good. sir. So the first part we have known of the metals. Sir, Uh, अभी तक बोर्ड जो पे हमने कुछ भी पढ़ी नहीं थी दिख सर रहा। वो सर हाँ, अभी तक जो हमने फिजिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। yes. अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं सर। ओके सर। सर बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिख रहा। सर बोर्ड पर कुछ नहीं दिख रहा। एक मिनट। Yet to come. Just waiting for a little bit. सर कुछ दिख नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ आएगा, एक मिनट रुको। सर दिख रहा है। ठीक। ठीक, इसका एक और एक प्रॉपर्टी था जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे, वो है हार्डनेस, है ना, और जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। चलिए अभी हम लोग जो कर रहे थे ना केमिकल प्रॉपर्टीज। यस सर। यस सर, अब दिख रहा है बोर्ड पे। तो निकालेंगे, कॉपी में से लिखेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहले जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स। का SO2 तो हो गया 2 MgO, है ना। उसके बाद जो है (4Na+O2 2Na2). कोई हमसे पूछ रहा था सर ये कैसे हो रहा है। देखिए सोडियम का वैलेंसी है 1 एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2, ठीक है। तो जब वैलेंसी हम लोग लिखते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं ना, तो इसको ऐसे करते हैं, इसका वैलेंसी यहाँ जाता है, इसका सिंबल ऐसे जाता है, तो ये हो जाता है Na2O। आई बात समझ में। जैसे मैग्नीशियम, सर ये 4NO लिखा हुआ है। हाँ 4Na+O2। जैसे मैग्नीशियम का हो गया, तो मैग्नीशियम को हम लोग कैसे करते हैं। मैग्नीशियम का आपका आ गया 2, तो मैग्नीशियम का 2 कैसे आ गया, ये पता है आपको? नहीं पता है। मैग्नीशियम के वैलेंसी 2 कैसे होता है, पता है? नो सर। नो सर। नो सर। बैलेंस के बारे में नहीं। नो सर। कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितना? 12 12। इसमें लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है
इसको पहले पहला सेल में रहता है 2, सेकेंड सेल में रहता है 8, थर्ड सेल में रहता है 2, कुल मिला के कितना हो गया 12 हो गया। 12। तो लास्ट सेल में जो रहता है ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहता है, इसमें आ गया आपका पहला में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, यस सर। लास्ट में आ गया 2। लास्ट वाला सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है ये बीच में क्या रहता है पता है, प्रोटॉन्स रहता है, प्रोटॉन्स। इसमें आ गया 12 प्रोटॉन्स। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन रहता है प्रोटॉन भी उतना ही रहता है, और न्यूट्रॉन रहता है यहाँ पे। हाँ, तो इसमें 12 प्रोटॉन रहते हैं और जो है 12 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि यस सर। प्रोटॉन से है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेंगे, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा ना। एटम जो है ये हमेशा क्या रहता है, एटम के न्यूट्रल रहने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको दोनों मिला के एक ही होना चाहिए। अरे ये समझ में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये इक्वल होना चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। यस सर। तो नाउ अभी ये बात समझ में आ रहा है कि इसमें 2, फिर इसमें 8, इसमें 2 कैसे आ गए, है ना। इसको कहते हैं के सेल, पहला सेल को बोलते हैं के सेल, फिर अगला वाला सेल को बोलता है एल सेल, फिर अगला सेल को बोलता है एम सेल। ठीक है, के सेल, एल सेल एंड एम सेल। तो सर मैग्नीशियम की तरह हर किसी में ऐसी सेल्स होती है? जी, तो इसको हम लोग के सेल, एल सेल, एम सेल। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेल नंबर ऑफ सीरियल नंबर, इसके बाद जो है मतलब सेल नंबर, कितना नंबर सेल है इसी को बोल सकते हैं आप लोग, सेल नंबर, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एक होता है ना कि एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है 2n², 2n²। तो पहला सेल नंबर है 1, जैसे कि हम लोग अभी इसको यहाँ पे अगर लिखते हैं तो आपको समझ हाँ, इसमें आएगा। एक वो रखनी है। हाँ, रुकिए, दिखाइए। कि जैसे फेंक दीजिए, कि फेंक दीजिए। जैसे कि ये, तो ये हो गया और फिर ये, तो पहला ये हो गया सेल के सेल, फिर ये एल सेल, फिर एम सेल, ऐसे चलता रहता है। तो ये फास्ट सेल है ना, n इक्वल टू 1, ये हो गया n इक्वल टू 1, है ना, सेल नंबर मींस n, n, तो ये हो गया n इक्वल टू 1। नेम हो गया इसका के सेल, क्या नाम हो गया, के सर n इक्वल टू 1 मतलब, सर n मतलब क्या हुआ? n मतलब हो गया जो पहला सेल है उसको n बोलता है, मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ठीक है सर। नंबर, नंबर ऑफ सेल। ओके, सो के, अब के हो गया, अब फॉर्मूला क्या है, 2 × n², तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 × 1², दैट मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन स्टे एट 2। आई बात समझ में? यस सर। सर किसी भी सेल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे अगर के सेल में, मतलब। हाँ, सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखिए इसका जब फॉर्मूला हम लोग डाले हैं ना, 2n² डाले हैं, तो फॉर्मूला जब 2n² डालते हैं तो देखिए पहला सेल है n इक्वल टू 1 है ना, पहली सेल है n इक्वल टू 1, तो इसका नाम है k, इसका फॉर्मूला है 2n², तो 2n² 2 × 1², दैट मींस 2 आ गया। अब n इक्वल टू 2 है, अब आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे। तो इसमें l है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है? सर 4। नो,
See, formula is 2 into 2 square. N means here Sir, 2. 8. Sir, 8, sir. 8, sir. That means 2 into 4, that means 8. Yes, sir. Are you getting it or not? Yes, sir. So we are learning it first time about electrons. So now, I will send you a document on this so that you can easily understand how the electronic Okay, sir. configuration is going on, because these things are very much important. Until unless you don't know this thing, you are unable to understand. जैसे कि एक बोले कि सर MCO कैसे होता है, ये कैसे होगा ये समझने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, unless you do not know the electronic configuration, you cannot write the symbols. N equal to 3. M. That means M cell हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे मैक्सिमम? 3. 18 है ना? Yes, sir. बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर सर। आ रही है। क्या आला खान बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को। नो सर, वो गलती से हो गया सर। ओके। सर 3 से ज्यादा सेल्स हो सकती है? n cell, तो 2 into 4 square, so सर 32 सर। वेरी गुड। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। यस लिख लिए हम सर एक लोग? क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर 3-4 से भी ज्यादा सेल्स हो सकती है एक किसी भी हाँ मैग्नीशियम हो सकता है, दूसरे मटेरियल में? हो सकता है। ओके सर। ठीक है सर ये मैक्सिमम नंबर है ना, इससे कम भी हो सकता है? देखिए एक बात है, अभी आप लोग बहुत एलिमेंट्री चीज आप लोग को पता है नहीं जो हमको बताना पड़ रहा है, तो यस इसके सर। बाद हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये पहले की रिसर्च थी। पहले तो बोला जाता है कि एटम में कुछ था ही नहीं, फिर डाल्टन ने बोला कि एटम में कुछ नहीं है, फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया तो उसमें बोला कि नहीं, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है, क्या है पार्टिकल्स, बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर बाद में आया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रहता है। कैसे रहता है इलेक्ट्रॉन? तो बोला इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये क्लाउड की तरह रहता है। कैसे क्लाउड की तरह रहता है? बोले क्लाउड जैसे एक जगह रहता है ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है। कॉन्सेप्ट आया तो फिर बोला इसको ऑर्बिटल, मतलब ये जो सेल है, सेल का अंदर और एक घर है जहां पे रहता है, इसको ऑर्बिटल बोला जाता है। ओके सर। अभी बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे क्योंकि पहली बार ये चीज आप सीख रहे हैं। तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। एलिमेंट्री लेवल पे हम पढ़ाते हैं। और एक ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट सेल में मैक्सिमम नंबर 8 रहता है इलेक्ट्रॉन, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में से? cannot be more than 8। एक रूल है इसका, ऑक्टेट रूल बोला जाता है। हर सेल में सर? हर नहीं, लास्ट सेल में, लास्ट यस सर। आगे ज्यादा रह सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल कैनॉट बी मोर देन 8 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। और हर कोई चाहता है कि मुझे 8 मिल जाए, 8 मिल जाए। जैसे कि ऑटो वाला जा रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा 4 पैसेंजर है, मुझको मेरा पूरा करना है, अगर पूरा नहीं करना है तो मैं इसको दे देता हूँ, उससे थोड़ा सा ले लेता हूँ, इस तरह से ट्रांसफर कर लेता है ना? तो इस हिसाब से ये ऑक्टेट रूल बता रहा है कि हमको पूरा पैसेंजर बनना है बाबा, तो उस हिसाब से ये कर लेता है। तो अभी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर आ रही यस सर। देखिए मैंने क्या लिखे थे, मैग्नीशियम 12, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये के सेल है, इसमें 2 था, मतलब K इक्वल टू 2। एल सेल में कितना था? 8, और M में कितना था? 2। आ रही है बात समझ में? नो सर। यस सर। इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि लिथियम हो गया, लिथियम का 3 है, तो लिथियम का 3 है तो के सेल में कितना रहेगा? 1, और सॉरी 2। एल सेल में कितना रहेगा? 1।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 1 2 1। अब देखिए एक चीज ध्यान से जिंदगी भर पता रखना है कि लास्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही हमेशा गड़बड़ करता है, मतलब यही रिएक्शन करता है, बाकी अंदर का जो है रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है ये पर्दा किया हुआ है ना, तो ये बाहर नहीं जल्दी से निकाल सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है? अट्रैक्ट कौन करता है? कौन करता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट? कोई बता पाएगा? सर के इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल सर, एवरीथिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल सर। तो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव। ओके सर। तो नेगेटिव सर कौन है? नेगेटिव तो खुद इसके अंदर है सर, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है प्रोटॉन ना? सर, प्रोटॉन। नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रहा है कि देखिए जैसे कि एक मैं यहाँ पे एक डाल दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट कौन करता है? अंदर का प्रोटॉन करता है। तो अंदर सबसे का अंदर प्रोटॉन, वाला सर, बीच वाला। तो इसको अट्रैक्ट करना आसान है या इसको अट्रैक्ट करना आसान है? किसको सर अट्रैक्ट पास वाले को अट्रैक्ट करना आसान किसको है। अट्रैक्ट करना सर, आसान है? क्योंकि पास वाले को ये सर। बाहर रहता है, बाहर रहता है। जिसमें आप सेल में जाओगे तो जो अंदर रहता है और अंदर और अंदर, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो बाहर वाला में रहता है उसको निकालना बहुत आसान रहता है। तो ये लास्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए जिसका वैलेंसी है, वैलेंसी लास्ट सेल में डिटरमिन होता है कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका ऊपर डिपेंड करता है कि एक किसी का भी वैलेंसी क्या है। या सादा बोलो सर ये बाहर वाले सेल्स के प्रोटॉन करते हैं सर, सर मतलब दूसरे प्रोटॉन्स करते हैं। यस, इसके दूसरे अंदर जो प्रोटॉन होता है वो अट्रैक्ट नहीं करता है सर। नहीं, दूसरे एटम का ये कर रहा है ना, ये एटम 2 हो गया, ये एटम 1 हो गया। तो ये एटम 1 एटम 2 जो है एटम 1 को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके सर। एटम 2 का कौन अट्रैक्ट कर रहा है? प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये वाला मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। इसीलिए वैलेंसी जो हम लोग मेजर करते हैं, तो ये कैसे मेजर करते हैं? लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका वैलेंसी क्या होगा। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? नो सर। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। तो ये लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसी में डिपेंड करता है कि इसका वैलेंसी क्या होगा। ठीक है Sir, it's going very difficult to everyone, sir. हाँ, It's going very difficult to everyone. Everyone is saying to explain again, sir. ओके। या थोड़ा सा असल में यही बात है ना कि मैंने जब आप लोग का इंटरव्यू लिए थे तभी ये बात समझ में आ गई थी कि थोड़ा सा आप लोग का जो पिछले वाला जो पढ़ाई सही से नहीं हुआ है ना, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक आ गया। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, इसके बाद हम लोग उसमें जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए इसको थोड़ा यस सर, ये आ गया। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, है ना। मीडियम हो गया 4, तो इसका क्या होगा? K2L2। तो हम लोग इन शॉर्ट इसको लिखते हैं T2। सर कैसे पता चलेगा सर K2 और L2? पता कैसे चलेगा सर? अभी जो हम लोग इसको पढ़ाया ना आपको, सर वो तो मैक्सिमम नंबर के लिए पढ़ाया था सर। हाँ, तो मैक्सिमम आप जितना उसको आ रहा है ना, उसको मैक्सिमम आपको आ रहा है, मैक्सिमम उसको कर लेना है। ठीक है, क्या है? 8 है, 8 है। तो Yes, 8 sir. तो नहीं है ना,
तो हम 8 तक उसको भर सकते हैं, 8 तक उसको भर सकते हैं। अभी पहला सेल में कितना भर सकते हैं? मैक्सिमम 2, सेकंड सेल में 8, 2 से ज्यादा पहला सेल में हम लोग नहीं डाल सकते, यस है ना। तो ये हो गया, देखिए के में हम लोग कितना डाल सकते हैं? मैक्सिमम 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। इस हिसाब से चलेंगे आप लोग, इस हिसाब से चलेंगे। तो लिथियम का ये हो गया, तो हीलियम का हो गया 4, जिसमें क्या लिखेंगे? 2 2, है ना। बोरान का हो गया 5, क्या लिखेंगे? 2 3। कार्बन का हो गया 6, इसमें क्या लिखेंगे? 2 4। नाइट्रोजन का हो गया 7, तो इसमें क्या लिखेंगे? 2 5, है ना। फिर ऑक्सीजन का हो गया 8, यस सर, समझ में आ गया। 2 और 6। सर सर ये थर्ड जो पे क्या पहले लिखा आप है? नंबर लिख रहे हैं, ये नंबर उसके मैक्सिमम नंबर है, 5 6 7 8। 8 मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। यस सर, समझ सर में आ गया। थर्ड पे क्या लिखा है? 2 डाल दिए, और इसमें 6, एफ का फ्लोरीन का कितना हो गया? 9, तो क्या होगा? 2 7। और नियन का हो गया कितना? 10, 2 8। ये मैक्सिमम 2 है, 8 सर। मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम लोग नहीं डाल पाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। सर 2 मैक्सिमम। किसी का साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हीलियम, नियन, आर्गन, दीस आर कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। और इनर्ट का मतलब है किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे बाबा, मेरा सब कुछ हो गया, किसी से लेना नहीं है, देना नहीं है, हम स्टेबल हो गया। स्टेबल कैसे हो सकता है? लास्ट सेल में 8 जो इलेक्ट्रॉन रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ये स्टेबल हो जाता है। अरे बात समझ जो जो अभी आपने बताया सर, इसमें थर्ड सेल नहीं है? नहीं है। नियॉन में थर्ड सेल कैसे होगा बाबू? इसमें 2 ही सेल होती है सर। 2 ही सेल होती है ना। अब सोडियम Yes, जब sir. आएगा, सोडियम से आ रहा है थर्ड सेल, सोडियम जब हम लोग कर रहे हैं तो थर्ड सेल आ रहा है 2 8 8। अब 8 से ज्यादा आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 8 आपका मैक्सिमम है, लास्ट सेल में 8 Yes, sir. मैक्सिमम है, यस सर, समझ में आ गया। है ना। अब सोडियम के बाद हम लोग अब क्या लिख सकते हैं? सोडियम का 11 आ गया, क्या लिख सकते हैं? 2 8 1। Yes, sir. बताइए कितना लिख सकते हैं? सर 2 8 और 2। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद और कोई बताएगा? दूसरा कोई एक आदमी नहीं बताओ, दूसरा भी बताओ। 2 8 सर 3। मैं कैन से? हाँ चलिए, सैफ हुसैन बताएगा, सैफ हुसैन, चलिए सैफ हुसैन बताइए। सोडियम मैग्नीशियम का तो हो गया, अभी आप मुझे बताइए एल्यूमिनियम का। 2 8 3 और 3। वेरी गुड। देखिए बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। सिलिकॉन हो गया 14, तो इसका कितना लिखेंगे? 4। 2 8 4। 4 2 8 4 सर। तो फास्फोरस का हो गया 15, कितना लिखेंगे? 2 8 5। 5 गुड। सर बस ये सब हमें याद करना पड़ेगा ना सर, कि सोडियम में 11 होता है, मैग्नीशियम में 12 हाँ, वो होता है। याद करना पड़ेगा, लेकिन वो याद 2 8 करने में 6। वो भी आपको 2 8 6 हम सिखाएंगे, वो भी आप सिखाएंगे, आपको मजे से सिखाएंगे कैसे याद कर सकते हैं। 2 यस 6 सर। एक सिस्टम है, इसको भी हम 2 लोग 8 6। 286 क्लोरीन का कितना हो गया? सर अब तो सबको समझ में आ गया सर। यस सर। यस सर। पहली सेल भरा जाए तो दूसरी सेल भरा जाए तो तीसरी सेल। ये सल्फर है। अच्छा, क्लोरीन का हो गया 17, 17 का मतलब 2 8 7। 2 8 7। 2 8 2 8 8। 2 8 2 8 8। 2 8 ये फिर ये लिमिट हो गया, आगे आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि 8 आपका लिमिट हो गया, तो अभी फिर उसके बाद फिर फोर्थ सेल में जा पाएंगे अपन। हाँ, अब जो है पोटासियम आप लिखेंगे तो क्या होगा, अब मजा देखिए। अब पोटासियम आ गया 19, अब 19 का क्या होगा? 2 8 8 1। 1
2 8 1 कितना आ गया 20 yes sir 2 2 मजा आ रहा है कि yes नहीं sir आ रहा है सर यस सर आ रहा है अब आ मजा रहा आया। है सर 13 का 21 का हो जाएगा 2883 2883 सर 22 का 2884 24 का 2885 यस सर बहुत इजी है ओके ओके मैं आपको इसका ऊपर एक पेपर आज PDF सेंड करने वाला हूँ। जैसे मैंने ये प्रैक्टिस कराया है आपको सब एकदम अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है यस सर कि हम जितना भी आपको समझाए तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये आप कैसे कर रहे हैं, ये आप कैसे कर रहे हैं, तो ये चीज आपको ना समझ में नहीं आएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको मैं आज सेंड कर देता हूँ ये सारी चीज, तो समझ में आएगी। फिर इसको एक वीडियो देख लेते हैं जो भी हम पढ़ाए हैं अभी तक। तो वीडियो भी एंड कर दिया and will represent the nucleus by the chemical symbol. Each electron in an atom is in a particular shell, and the electrons must occupy the lowest available shell nearest the nucleus. So, when we are drawing the electron configuration, we have to fill up each shell in turn, starting with the lowest. We'll take a lithium atom as an example. With an atomic number of 3, it must have 3 electrons to balance the positive charge of the 3 protons in the nucleus. It's worth remembering that the atomic number tells you the total number of electrons in a neutral atom. So, we put the first electron into the first shell, and the second. However, this shell can only contain a maximum of 2 electrons. That's one of the rules that you need to remember. The third electron, therefore, must go into the next shell, which we draw as a larger circle around the outside of the first. And that completes the electronic configuration of a lithium atom. The same process of filling up shells applies to larger atoms. You always start with the lowest available shell, and whenever a shell is full, the next electron to be added goes into the next shell. And that's pretty much it. All you need to know is how many electrons can occupy each shell, and at this level, you only need to know the rules for the first 20 elements. The maximum numbers are as follows. The first shell can contain a maximum of 2 electrons. The second shell, up to 8 electrons. The third shell also has a maximum of 8 electrons. And the 19th and 20th electrons go into the fourth shell. And this would actually... Are you getting it? First cell contains 2 electrons. yes sir Yes, sir. Yes, sir. लास्ट सेल में ना ये ऐसे रहता है, लास्ट सेल में ऐसे रहता है। Yes, sir. ऊपर में लिखा हुआ है, ऐसे एक्सप्रेशन बहुत ही सुंदर दिया हुआ है। represent a calcium atom. Note that as we fill up each level, we've been drawing the electrons evenly spaced out on each shell. This is to keep the diagrams tidy and make it easier to count the electrons. And what's more, there's a shorthand way of writing this down. 2, 8, 8, 2. The first number represents the inner shell or lowest energy level. The full stop shows how the electrons are separated between the shells. The second number tells us how many electrons are in the next shell. Now, how would you write the... Okay, so these are the thing. ये आपको पता लग चुका है, तो इसमें हम लोग और एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। आपको आज का जो होम टास्क है 1 से 20 तक घर में करना है इसको। और मैं आपको इसका जो है ना एक ये सेंड कर देता हूँ, कैसे सेंड कर देता हूँ। 1 से 20 का एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होम टास्क रहा आपका। Yes, sir. कर देना। और मैं आपको एक सेंड कर देता हूँ, तो उसको पढ़ने में आप थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे इसको वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्यों सोडियम 2 लिखा, क्यों Na2O लिखा, क्यों MgO लिखा, क्यों जिंक ऑक्साइड लिखा, जिंक 4 क्यों नहीं लिखा, और जहां 4 लिख रहे हैं तो क्यों नहीं लिख रहे हैं,
ये चीज समझने के लिए इसको थोड़ा सा समझना है ना? Yes, sir. सर इंशाल्लाह रख रहे हैं, तो फिर अगली मुलाकात होगी इस क्लास में। मैं इसको सेम करूंगा, अच्छे से उसको कर लेना है। डाउट रहेगा तो मैं Sir, today- डाउट शेयरिंग का भी क्लास कर सकता हूँ। डाउट 10 बजे जो टेस्ट है सर डाउट शेयरिंग का क्लास आज भी एक कर सकते हैं, रात को भी ये हो सकता है। ठीक है, ओके सर